दही पात खाहे जियो देख रूप अतनूप मोह महामग भई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम ज्ञान ध्यान धरत हिए चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सजन सचा पातशाह श्री शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो वाहिगुरु साहिब जी सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद हंसा देख तरंदिया बगा आया चाओ डुब मुए बग बपुड़े सिर तल उपर पाओ हंसा देख तरंदिया बगा आया चाओ डुब मुए बग बपुड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वड हंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपुड़ा जन्म न भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगुला जाको नदर तरे जे तिस भावै नानका कागहो हंस करे सरवर पंखी हे कड़ो हाही वाल 50 एह तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस सरवर पंखी हे कड़ो हाही वाल 50 एह तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ इन्हां पावन सलोकां दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे ने सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी प्रचारक। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल बैठ के बाणी दी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੋਂ ਵਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਰਾਜ਼ਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਸਹਾਏ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
चल रही लड़ीवार विचार श्लोक बाबा फरीद जी के श्लोकां दा पाठ बहुत ही सत्कारयोग इस स्थान दे ग्रंथी साहिबान ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 122 ਤੇ 123 ਹਨ ਤੇ 124 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ 130 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਉਹ 1507 ਤੋਂ 1515 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ 1516 ਤੋਂ 1517 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ 1518 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521 ਤੱਕ ਤੇ 1521 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਰਾਰ, ਬਾਬਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਦੇ ਪਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
इतिहास के ये प्रमाण आप जी नूं बेअंत थावां ते प्राप्त होणगे। और इन्हां प्रमाणां दी होर प्रौढ़ता इस करके हो जाती है कि धन गुरु नानक साहिब जी ने जदों भगत बाणी नूं विचारिया है ते पढ़िया है, जिथे जिथे विषयां नूं होर खोलण दी ਜਿਹੜਾ ਹੈ मेरे पातशाह जी ने लोड़ पई ते उन्हां विषयां नूं होर विस्तार नाल खोलिया भी है। और धन गुरु अर्जन साहिब जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की है, फिर इस भगत बाणी नूं एक बार विचारदियां होइयां जिथे जिथे श्लोकां दा ते कुछ शब्दां दा विस्तार करन दी लोड़ सी, उन्हां शब्दां दा विस्तार भी कीता है। एक हवाला दे के मैं अगे चलां। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगत बाणी दे संबंध विच और भगत कबीर जी दे शब्दां विच एक गल लिखी मिलती है, नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। गुरदेव ने लुका कुछ नहीं रखिया। जिहड़ा शब्द है ना, लेले को चुंगे नित भेड़, इहदा हैडिंग तुसीं पढ़ के वेखना। मेरे गुरदेव ने साफ अखरां विच लिख दिता कि इस शब्द दा जिहड़ा है मूल शब्द पहला कबीर साहिब जी दा है, उहदा विस्तार धन गुरु अर्जन साहिब महाराज ने कीता है। इसे तरह श्लोक कबीर साहिब जी, श्लोक फरीद साहिब जी दे विच भी जिथे जिथे लोड़ पई पातशाह जी ने उत्थे थां थां ते श्लोक दर्ज कीते ने। कल भी सिंह साहब ने आप जी नूं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि जो श्लोक नंबर 21, 20 ਅਤੇ 21 ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ बड़े सोहने ढंग नाल कीता सी। तन ना तपाए तनूर जो बालन हड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री समाल। इसे तरह मैं आप जी का ध्यान अज दे पावन पवित्र श्लोक वाल दवाना चाहुंदा है प्यारिओ, कि अज दे पावन श्लोक जिहड़े भाई साहब ने पढ़े ने, हंसां देख तरंदियां बग्गा भे आया चाओ, डुब मूए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। असल मायने च इस श्लोक विद्वानां दी खोज मुताबक अते खास करके जिन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दर्पण कीता, प्रोफैसर साहिब सिंह जी, उन्हां ने इस श्लोक नूं धन गुरु अमरदास महाराज जी दा लिखिया है। और इस दा प्रमाण आप जी नूं वडहंस की वार विचों मिलदा है। जदों वडहंस की वार दी आरंभता हुंदी है तां उस दी आरंभता विच ही मेरे मालक ने ये दोवें श्लोक दर्ज कीते ने, जिहड़े इत्थे कुछ फर्क नाल दर्ज होए ने। केवल तो केवल एक दो अखर मात्र दा मैं फर्क कह लिया ते उस फर्क नाल ये श्लोक इत्थे दर्ज होए ने। पहला श्लोक वडहंस की वार विचों आप जी नूं मिलदा है, हंसा वेख तरंदियां बग्गा भे आया चाओ, डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। ते जिहड़ा दूजा श्लोक है, मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग। भाई साहब ने बहुत ध्यान नाल पढ़िया है, नहीं तो आम बंदा भी कई बार टपला खा जाता है, क्योंकि उत्थे है मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीया संग। हुण इत्थे कीता शब्द, उत्थे वडहंस की वार दे विच मेरे मालक ने तां मैं कीया संग वरतिया है। दूजी पंक्ति है, जे जाना बग बपड़ा तां जन्म ना देंदी अंग, इत्थे जन्म ना भेड़ी अंग। ये जो रमजान है इहदे बारे तां मेरा मालक ही जानदा है कि ये क्यों फर्क पाए ने। मैं बस बेनती इन्नी को करनी चाहुंदा कि साध संगत जी, बाणी नूं असी बड़े ध्यान नाल पढ़ना है, बाणी नूं असी बड़े विचार नाल पढ़ना है। सतगुरु महाराज ने ये फर्क सुचेतता वास्ते भी पाए ने, किते ये ना होवे कि जिवें अक्सर वेखण नूं मिलदा है कि सौदर दी पौड़ी पढ़दियां असी जपजी विच लीन हो गए, ते जपजी दी पढ़दियां पौड़ी असी जिहड़ा है वो आसा महला पहला सुन वड्डा आखे ते पुज गए।
ਸੋਧਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਗ ਜਦੋਂ 347 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ ਕਈ ਫਰਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 124 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕ ਪਟਨ ਤੋਂ ਸੇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ 22, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 2 ਵਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਪਹਾ ਚੜਾ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਨਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਭਈ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਥੈਲਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝਗੜਿਆ ਕਰੇ,
झगड़ा कलेश हो गया। और झगड़ा किहड़ी गल तो सी? झगड़ा इस गल तो सी भी घर वाला गरीब सी, वो गहने नहीं सी बना के दिंदा। हुण घर वाला किसी सियाणे कोल गया, कहण लगा जी मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, झगड़ा हुंदा दोनों जियां च, ये झगड़ा किवें खत्म होवे, परेशानी किवें खत्म होवे। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। रंग इको जिहा, शकल अकल इको जी, तेनू पहचानना बड़ा मुश्किल होएगा। कहने लगा तेरी घरवाली नू पहचानना तो बड़ी दूर दी गल है। बाजार दे विच आर्टिफिशियल गहने बड़े मिलते हैं, तुसी वेखो। और सच तो यही है कि सारे सोने चांदी हीरे जवाहरातां दे पिछे लड़ाई झगड़े दौड़ फिर करी जाते हैं, पर सच ये भी पाउंदे बहुत घट ही ने, बहुत घट पाउंदियां। सारे नकली पा के तुसी वेखो, विआह शादियां अटेंड जिन्ने भी नकली पाई फिरदे ने, ये बहुत सारे गहने जिन्ने ओरिजिनल बनाने सी ना, उस नालों भी नकली इकट्ठे करके लियाया, बहुत ज्यादा लियाया। हुण कहंदे घरवाली बड़ी खुश होई, उहनूं किहड़ा पता सी भी नकली ने कि असली ने, गुआंढणां नूं दिखाई जाए। कहंदी है वेखो तुसी एवें कहंदियां सी कि तेरा घर वाला तेरे वास्ते कुछ नहीं करता, आ वेखिया किन्ने सारे गहने लिआया, साडे तां ढेर लग्या होया। हुण गहना एक भी होवे ते ओह कित्थों बर्दाश्त होवे, जद तक दुराणी नूं ना दिखावे, जठाणी नूं ना दिखावे, आंढणा गुआंढणां नूं ना विखावे, सारे पासे विखाए। कहंदे सारे महल्ले च रोला पै गया, पिंड च सारे रोला पै गया भी फलाना बंदा उन्हें अपनी घरवाली नूं बड़े कमाल दे गहने बनाए, बड़ा कुछ दे दिता, बड़ा कुछ हैगा उहदे कोल। तां कहंदे चोर सन ला गए। जदों चोर सन ला गए, गहने लुटे गए, चोरी हो गए, हुण रोंदी है, हुण पिट स्यापा हो गया, बड़ा रोई, बड़ा कुरलाई, हाय वे लोको मैं लुटी गई, पता नहीं किवें मेहनत करके मेरे घर वाले ने मैनू ये गहने बनाए, मैं झगड़दी रही, बड़ा कुछ किया, फिर जाके गहने मिले सी, मेरी माती मारी गई, मैं सारियां नूं विखाउंदी रही, हुण मेरे कोल एक भी नहीं, सारा कुछ लुटिया गया। इनू गसां ते गसां आण, चक्कर ते चक्कर आण, डिग पवे। कहंदे ने घर वाला एक नुकरे बह के हसदा पिया सी, वो हस रहा सी ते एक बंदा आया, वो कहन लगा भरावा भी तेरे घर सन लग गई, तेरे घर चोरी हो गई, तू हसदा पिया, तेरी घरवाली नूं चक्कर आई जा रहे ने, वो डिगदी पई है ते तू आप हसदा पिया, कारण की है? वो कहंदा भरावा जोर दी ना बोल, चुप कर जा, ये शुक्र है अज ओ रो रही है ते कुछ कु महीनों बाद फिर मैं रोना सी। कहंदा क्यों? कहंदा गहने तां नकली सन, भी जे ओ पाउंदी हंडाउंदी उन्हां दा पानी उतर जाना सी, उन्हां दी भा उतर जानी सी। कहण लगे मैं तां नकली गहने तैयार करके दिते सीगे, ते जे उन्हां दा पानी उतर जांदा सोने दा, कहण लगे जेड़े मैं गहने नकली तैयार कराए फिर मेरी शामत नहीं सी। हुण एक काम हो गया पई, हुण इहदे सिर एहसान रह गया भी मैं तां तैनूं दित्ते सी, तेरे तो सांभे ही नहीं गए। प्यारिओ बहुत कुछ बाजार विच नकली है, दुनिया विच बहुत कुछ नकली है, बस सुचेत होने की लोड़ है। धार्मिक जगत दे विच भी चेते रखना, जिथे लोकां ने साधु भगतां गुरुआं पीरां पैगंबरां नूं नतमस्तक होए, उन्हां दी सच्ची विचार नूं दृढ़ कीता, ते उन्हां वल वेखदियां होइयां बहुत सारे पखंडी भी अपनी होंद जता बैठे, बहुत सारे पखंडी भी मथे ते तिलक ला के आ गए, बहुत सारे पखंडी भी तेड़ चोले पा के आ गए, बहुत सारे पखंडी भी जिहड़ा है वो इहो जे आए कि जदों उन्हां वेखिया हंस ते तर रहे ने ते साडी भी गल बन जाएगी,
लोग साडे भी पैर पूजणगे। ते सच यही है कि लोगों ने केवल हंस वर्गा रूप वेख्या, लोगों ने केवल ये वेख्या कि हंस का भी रंग चिट्टा है ते बगले का भी चिट्टा है। हंस भी सरोवर किनारे बैठा है ते बगला भी जेड़ा है वो सरोवर किनारे बैठा है। इस गल नूं ना समझ सके कि हंस सरोवर किनारे क्यों बैठा है ते बगला जेड़ा है वो तालाब किनारे क्यों बैठा है। प्यारिओ, बाबा जी कहंदे ने हंसां देख तरंदियां बग्गा पियाया चाओ, डुब मोए मग बपड़े सिर तल उपर पाओ। सतगुरु कहंदे हंसां नूं वेख्या तरदियां होया भी तर रहे ने ते बग्गां नूं भी चाओ आ गया, बगलियां नूं भी चाओ आया ते बगले भी जाके बह गए। तुसी बगले नूं कदे तीरथ किनारे वेखो जाके, बहुत सारे बगले बैठे ने। तुसी कदे जाके वेखो छप्पड़ किनारे एक लत्त ते खलोता होया, अखां मीटियां होइयां ते वो किस करके बैठा है कि भी जो माल मता असल साधु कोल आ रहे हैं, असल दरवेश कोल आ रहे हैं, ये मेरे कोल भी आवे। ये धन दौलत मैं भी इकट्ठी कर लिया। चेते रखना उस पखंडी दा केवल इन्ना को मकसद हुंदा है कि जिन्नी भी दौलत है वो मैं इकट्ठी कर लवां, लुट पुट ला। हालांकि करनी अते कथनी विच बहुत फर्क है। हंस दी करनी विच ते बगले दी करनी विच धरती असमान दा फर्क है। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु महाराज कहंदे ने, कहण लगे मानसर पर ले जाए बिठाइए बग, मुक्ता अमोल तज मीन बीन खात है। कहंदे मान सरोवर ते ले जाके तुसी लोको बगले नूं बिठा दो ते बगला की करदा है जी? मान सरोवर ते चंगी थां ते बिठाओगे ना तुसी उन्हों जाके, ते बगले ने मान सरोवर विचों हीरे मोती नहीं चुगने। क्योंकि जे हंस नूं तुसी मान सरोवर ते बिठाओगे ते हंस दा खाना की है? हंस ने मान सरोवर विच चुब्बी मारनी है ते ओ मोती चुगदा है, हीरे मोती चुगदा है। ते बगला जेड़ा है वो हंस दी तरह उथों मोती नहीं चुग रहा, उथों सगों डडियां ते मच्छियां पाल रहा। मानसर पर ले जाए बैठाइए बग, मुक्ता अमोल तज मीन बीन खात है। वो कीमती पदार्थां नूं छड्ड के ते मच्छियां ही बींदा पिया है। बग डड्डां भालण जावे, बगला जेड़ा है ना वो डडियां भालण जा रहे हैं। वो तीर्थ स्थानां ते भी प्यारिओ ऐसे बड़े सारे ठग नूं मिलणगे जिन्हां दा मकसद केवल डडियां नूं फड़ना ही है और डडियां नूं निगल जाना ही है। सतगुरु महाराज कहंदे ने प्यारिओ, जे केवल बिरती बगले वर्गी रखी ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुचेत करते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने ये बगले वर्गियां बिरतियां छड्ड, तेरा पांच उगड़ गया है। प्यारिया संसार नूं दस दिता गुरुदेव ने, कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए। वो बगला बिरतियां नूं कह दिता कि ऐ ठगो, तुसी जे तीर्थ स्थानां ते बैठ के, मैं बेनती करा कि ऐसियां रंग रतड़ियां रूहां बहुत सारियां ने जेड़ियां वाकई भगती कर रही ने, बंदगी कर रही ने, पर पखंड वालियां दी भी कोई घाट नहीं है। पखंड करन वाले भी बेअंत तुरे फिरदे ने। सतगुरु कहंदे भरावा हुण तेरा पाज उगड़ चुकिया है। वेख संसार के सामने रख दी है विचारधारा, कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नाहत फिरे लियो सात समुंदर लोक गयो पर लोक गवाए।
एक छप्पड़ छड्ड, दो समुंदर छड्ड, तू 10 20 50 के किनारे बह जावी। पर इस तरह जे बगल समाधियां लगाइया ना ते तू लोक भी गवा लिया ते परलोक भी गवा लिया। तेरिया बगल समाधियां दे हुण झमेले विच कोई नहीं पैण वाला। तेरिया बगल समाधियां दा हुण पाज उगड़ गया है। हुण सारे जानते ने कि तू पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिलपूजस बगुल समादं। पुस्तकां पढ़ना है, बाद विवाद भी करते हैं, संध्या भी करते हैं। पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिलपूजस बगुल समादं। तू शिवलिंग पूजदे, पत्थर पूजदे, बगले वर्गियां समाधियां भी लाउने। सिल पूजस बगुल समादंग मुख झूठ विभूकण सार। जिन्ना प्यारे पखंडी झूठ बोल दिंदा है ना सवार के, इन्ना कोई नहीं बोलता। और ओदे झूठ जाल विच असीं फस भी जाने। इन्ने वाली पूजा करा लो, ये हो जाएगा। इस तरह हवन करा लो, ये कुछ हो जाएगा। इस तरह तुसी जेड़ा जादू टूने कर लो, आ धागा लै जाओ, ये नाल ये कुछ हो जाएगा। पखंडी पता नहीं तुहानू स्वाद की पुड़िया भी सच है, वो लखां विच वेच जांदा है। स्वाद की पुड़िया भी ना वो लखां विच वेच जांदा है। और कितना कुछ समाज विच हो रहा है, तुसी आले दुआले झाती मारो। गुरदेव पातशाह कहते ने पढ़ पुस्तक संध्या बादं मुख झूठ विभूखण सारंग। तू मुख तो झूठ बोलदा है और किस तरह गहने वर्गा सवार के बोलदा है। मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग। गल माला तिलक ललाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग। जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय तरपंग। सतगुरु कहंदे ये सब पखंड है तेरा कीता होया। ये सारा कुछ पखंड है, ये विचों कुछ नहीं लभना है। मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने प्यारिओ अजिहे बगले भगतां तो बच के रहो, अजिहे बगले पखंडियां तो बच के रहो। सच्चे गुरु का संग करो जिहदे कोल सच है। ये बगले अज रीसां करते ने, रीसां करें तो नाड़ियां अज रीसां कर रहे ने, पर सच है भलके ये डुब जाणगे। भलके इन्हां विचों कोई नजर नहीं आवेगा। तुहाडी मदद वास्ते खलोता होया गुरदेव कहंदे ने डुब मूए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। कहण लगे इन्हां दे सिर हेठां होने ते पैर उत्ते होने, ये डुबदे हुए सारियां नूं नजर आउणगे। प्यारिओ पातशाह कहंदे ने कि लोग जिहड़े ने वो इन्हां दे मगर होण तो पिछा नहीं हटते। पता नहीं किस तरह का ये भरम जाल पाउंदे ने पखंडी लोग, इन्हां दी चुंगल विच फस जांदे ने। तुसीं वेखो धन गुरु नानक साहिब महाराज जदों अपनियां उदासियां दे दौरान तुलंबे दी धरती ते गए ने, ते तुलंबे दी धरती ते कौन बैठा है? तुलंबे दी धरती ते वो ठग बगला बनया बैठा है ना। वो ठग बिरती दा ठग बैठा होया है, जिसदे कोल बाहरी विखावे दी कोई घाट नहीं है, जिन्हें चोला भी बड़ा सोहना पाया होया है, जिसने माला भी हाथ विच फड़ी हुई है, और जिसदे कोल पूजा दा वो पखंड दा सारा साजो समान है, सारा कुछ है उहदे कोल। सतगुरु महाराज जदों कोल गए ते ये भी चेते रखना, आए गए नूं प्रसादा भी छकाउंदा है, सरां भी दिंदा आए गए नूं, रात बराते कोई आ जाए उहनूं रोकदा भी है। ते छेती कीतियां लोकां नूं उहदी पहचान भी नहीं सी पैंदी। लोक तां उहदे बाहरी पहरावे नूं वेख के लोग उहनूं शेख जी कहंदे सन। भई शेख सज्जन जी ने साडे पिंड दी तां इन्हां ने दूर दूर तक दुहाई पाई हुई है, ये लोकां नूं पनाह दिंदे ने। ये गल वखरी है कि पनाह देण दी आड़ विच लोकां नूं लुट लैंदे ने। वो सज्जन ठग जदों धन गुरु नानक साहिब भाई मरदाना जी उहदे कोल पुजे, ऐन तैयारी करके बैठा होया, बाबा जी प्रसादा। सतगुरु कहण लगे भुख नहीं है। बाबा जी आराम बिस्तरा ला दिता, कहण लगे कोई नहीं करांगे। रात नूं भी वेखण
देखण आया, कहन लगा बाबा जी दुध छकोगे? सतगुरु कहन लगे हजे लोड़ नहीं, हजे लोड़ नहीं। बार बार झातियां मारदा है ते धन गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे मरदानिया छेड़ रबाब। बाणी आई है सूही महला पहला। सतगुरु महाराज ने फिर शब्द गायन किया, सज्जन कोल खलोता होया झाती मारिया ताकी विचों ते गुरदेव पातशाह कहंदे ने उज्जल कहा चिलकना, घोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरै, जेसों धोवां तिस। सतगुरु पातशाह कहंदे धोतियां झूठ ना उतरै, जेसों धोवां तिस। पातशाह कहंदे कहे दा भांडा है ना, वो बाहरों लिश्क माए, बाहरों उन्होंने पहचान नहीं तुसी सकते भी ये झूठा है। बाहरों ऐ लिश्क पुश्क रहे हैं, चमक रहे हैं, पर जदों विच हाथ मारोगे विच कालख लगी होती है। पुरातन भांडे कांसी दे हुंदे सी ना, मावां स्वाह नाल उहनूं मांजदियां सी, बार बार मांजदियां सी, तां जाके उन्हें सुच्चा अंदर कहंदे कालख लगी हुंदी है। सतगुरु पातशाह कहंदे सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दे सानू सज्जणा। जेड़े तू कर्म करदा है ना, इस बाणे दी आड़ दे विच, इस विखावे दी आड़ विच, इस भेख दी आड़ दे विच सच यह है कि एक कर्म तेरे तेनू दरगाह दे विच उथे खलोता होया नजर आएगा ना, ते उस वेले तू अपने आप नू तकी कि फैसला की होना है। उस वेले तेनू तेरे कीते हुए इन्हां वहमां भरमां पखंडां दी सजा मिलेगी रब दे दरबार विच। की जवाब देवेगा उत्थे कि मैं पखंड करके दुनिया नू लुटदा रहा, लोकां नू लुटदा रहा, वहम भरम करके लोकां नू लुटदा रहा, ठगदा रहा, ठगियां करदा रहा। ओ प्यारिया रत्ता विचार कर प्यारियो, उस ठग सज्जन ने सतगुरु दा एक शब्द सुनिया, जदे धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां ते टह पिया, टह पिया ते सतगुरु दे चरनां ते टह के माफी मंगदा है। होर भी जेड़े सरां विच रुके हुए सन, ठहरे हुए सन, वो निकल आए, बाहर आ गए, धन गुरु नानक साहब दे चरनां ते नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, कहण लगे बाबा जी तुसी सानू बचा लिया, तुसी सानू बचा लिया बाबा जी, ये ते सानू ही लुट लैंदा, ये ते सानू ही लुट के खा जांदा, खबरे अज रात नू सानू लुट लेना सी, खबरे कल लुट लेना सी, पता नहीं इस ठग दे चक्रां विच असी आ गए। असी ते सोचिया ये शेख है, असी ते सोचिया ये सज्जन है, असी ते सोचिया संत महापुरुष है, असी तां दी सरां विच ठहरे सां, पर तुसी ते पाजी उगाड़ के रख दिता। असल मायने च सज्जन नहीं, ये ठग सी। प्यारियो धन गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने अज भी लोग ठगां दे वस पै जांदे ने, ते ठग जेड़े ने ना वो बार बार एक गल नू बड़े प्यार नाल तुहानू कहणगे, बड़े प्यार नाल, एक बार कहणगे, दो बार, तीन बार, चौथी बार तुसी उन्हां दी गल नू मानी जाओगे भी वाकई गल तां ठीक ही है, इंज ही कह रहे सन। असी सोचते हाँ भाई मेरे नाल ते इंज ही हो रहा है। एक बंदा कतूरा खरीद के लै जा रहा सी ते ठगां नू मन नू भा गया। वो कहंदे ने एक बंदा ना वो बकरी दा बच्चा खरीद के लैके जा रहा सी, ठगां दे मन नू भा गया। ठग कहण लगे भी ये तू खोना है, लेना है, पर ढंग अपना लिए। वो थोड़ी थोड़ी दूर ते जाके खड़ गए। जदों वो बकरी दे बच्चे नू लैके आए ना, पहला कहन लगा जी ये कतूरा कित्थों चुके हैं, बड़ा सोहना है। कहन लगा जी मैं चुकया नहीं, मैं खरीद के ले आया। दूजा अगे जाके खड़ गया, कहन लगे एदे कन्न बड़े जेड़ा है वो कुत्ते दे बच्चे वर्गे ने, वैसे है बकरी दा बच्चा ही पर एदे कन्न कुत्ते दे वर्गे ने। चलो जी तीजा होर थोड़ी दूरी ते 1 किलोमीटर ते खड़ा सी। वो कहने लगा कमाल हो गई, साडे घर भी इस तरह का कुत्ते का बच्चा है, ओदी पूंछ भी इहदे नाल दी हैगी है, इहदी तां पूंछ बिल्कुल ही जमा उहदे वर्गी हैगी है।
चौथा जाके वो होर थोड़ी दूरी ते खलोता सी। जिन्ना चिर इन्हें थोड़ी मंजिल तय की, इहदे मन च भी भरम आया भी किसी ने मेरा मूर्ख ही ना बना दिता होवे। खबरे मैनू जिहड़ा है वो बकरी दे बच्चा कह के कुत्ते दा बच्चा ते नहीं फड़ा दिता, किते कतूरा ते नहीं मैनू फड़ा दिता हैगा। ये वेखदा बड़े निहारदा वेखण। जो चौथा ठग अगे मिलिया वो कहन लगा, भलिओ आ कतूरा कित्थों चुक्या है? बड़ा सोहना है, इहदे वाल साडे कतूरे वर्गे ने, इहदियां अखां इहदे कन्न साडे वर्गे ने। वो बंदे दा मन जिहड़ा है वो बदल गया। वो थोड़ी जी फलांग अगे पुट के उहनूं छड्ड के कहंदा, मना जे घर चला गया बच्चे कहणगे बापू लैण बकरी दा बच्चा गया सी, लिया तू कतूरा लिआया। कहण लगे उत्थे ही छड्ड दिता, ठग आए ते चुके ते चलदे बने। साडी भी यही हालत है। सानू पखंडी बार बार एक गल नूं रिपीट करके कही जा रहे हैं, असीं मन जाने आ। देखो जी इवें थोड़ी ना हुंदा है, तुसी इन्ने वाले हमन कराओ, आ धागा पाण नाल की हुंदा है, धागा पा के वेखो तुहाडा सब कुछ बदल जाएगा। ते असीं कहने चलो बाबा जी कह रहे ने मान ही लेने। असीं उन्हां पासे ही फस जाने आ। ते जदों असीं लुट्टे पुट्टे जाने आ, अगला एक धागा ही सानू लखां दा वेच जांदा है। एक तवीद ही सानू लखां दा बेच जांदा। जदों साडी कोठी अपने नां करा लैंदा है फिर असीं पछताउने आ। फिर बाबे अमरदास दे बोल चेते आउंदे ने, मैं जाणिया वड हंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपुड़ा जन्म न भेड़ी अंग। जे मैनू पता हुंदा ये बगला है फिर मैं इहदे नेड़े ना जाऊंदी, फिर मैं इहदे नेड़े ना टुकदी, अपना जन्म बेअर्थ ना गवाउंदा। मैनू नहीं सी पता। मच्छी ने सोचिया कोई हंस है, ये तो मोती चुगण आया, मैनू किहड़ा कुछ कह रहा है। पर असल विच एक लत्त ते खलोता होया, अखां मीट के वो बगला सी जिहड़ा उहनूं निगलण वास्ते ही बैठा होया सी। प्यारिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ना 11 भट्टां दी भी बाणी दर्ज है। 11 दे 11 भट्ट जदों श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की हजूरी विच आए ना, ते उन्हां ने अपनी रचना सुनाई। उन्हां दी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज हुई है। ते उन्हां विच उन्हां ने बड़ी प्यारी गल आखी है। उस रचना दे विच भट्ट साहिबान समस्त संसार नूं सुचेत करदे ने। और सुचेत किवें करदे ने? वो कहंदे ने असी अपने पिंडे ते हंडाया है। असी इवें नहीं कह रहे हैं। एक ते गल हुंदी है ना सुनी सुनाई, एक हुंदा जाके चेक करना, खुद प्रैक्टिकल करना, जाके वेखना। ते वो कहंदे ने असी जाके वेखिया, नेड़े जाके वेखिया। असी पखंडियां दे डेरियां नूं वेखिया, असी पखंड दे नां ते जिहड़े जप तप कर रहे ने उन्हां नूं वेखिया, असी कोल जाके वेखिया उन्हां दे। कहण लगे दूजी गल, 1-2 दिन नहीं जाके वेखिया, 3-4 दिन नहीं जाके वेखिया। असी ते सोचते हाँ कि असी 5 दिन किसे गए ते असी उन्हां दे बन के हो गए। ये वेखिया ही नहीं कि असल डेफिनेशन की है। प्यारिओ, कोई भी धार्मिक जगत विच होवे, गुरबाणी ये कहंदी है कि धार्मिक जगत दे विच सब तो पहला ओदी डेफिनेशन देखो की है। गुरु नूं मत्था टेकण आए हो ना, सतगुरु नूं मत्था टेकणे, सतगुरु वाले बनना है जिंदगी दे विच। ते सतगुरु ने डेफिनेशन दिती है, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लईए। जिस गुरु दे दीदारे कीते हैं तन मन होए निहाल, जांगुर देखा सामने। जदों तन ते मन नूं सुकून मिले, जदों सोए सुहंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। ते सिजदा करो। ते जदों ठंडक ना मिले ते एवें पखंडियां दे अगे मत्थे ना टेकिया करो। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है।
जिस नूं मिल के मन आनंदित हो जाए। ये 11 ਦੇ 11 भट्ट जदों गुरदेव के कोल आए ना, ये उस्तत सुनते आ रहे सी। ये असल मायने विच प्रोफैसर साहिब सिंह हुणां ने लिखे हैं कि उस दिन आए सन जिस दिन गुरु रामदास पिता जी ज्योति जोत समा गए सन, ते सारी बरादरी भाईचारा गोविंदवाल साहिब इकत्र होया सी, ते लोग खंडूर साहिब तो, करतारपुर तो, होर कई थावां तो गोविंदवाल साहिब आ रहे सन। संगती अरदास समागम विच आ रहे सन, ते उदों लोग चर्चावां कर रहे सी, गल्लां कर रहे सी भई ऐंदकी जिहड़े गुरु बने ने ना, वो बड़े करनी वाले ने, कथनी वाले ने, उन्हां दा जीवन बड़ा उच्चा सुच्चा है। ते इन्हां दे मन विच ख्याल सी कि शायद कोई बुजुर्ग गुरु बने जिहदी उम्र 70, 80, 90 साल दी होएगी। जदों आके वेखिया धन गुरु अर्जन साहिब दी उम्र 18 साल सी। वेख के हैरान हो गए भी जिन्हां दे इन्ने बेअंत गुण ने, जिन्हां दी करनी अते कथनी विच कोई फर्क नहीं है, लोग उन्हां दे अगे सिजदे कर रहे ने और आप आके वेखे हैं। ते वड्डी गल सी जिस दिन बाबा बुढ़ा साहिब नूं गुरु अर्जन साहिब ने कहा सी, जिस दिन पृथ्वी चंद झगड़ा कर रहा सी दस्तार नूं लैके, गुरदेव ने कहा जे भराता दा दस्तार नाल सरदा ते दस्तार भराता नूं दे दिओ। किन्नी निमरता। हुण सारे दे सारे भट्ट 11 भट्ट गुरु अर्जन साहिब वाल निहारदे ने, वेखदे ने, ते वो कहंदे असी 1-2 दिन दा नहीं, 4 दिन दा नहीं, 1 साल दा तजर्बा संगत जी तुहाडे सामने रख रहे हैं, और इस करके रख रहे हैं कि मतां तुहाडे विचों कोई भुलेखा खा जाए। उन्हां ने कहा रहे हो संत हो टोल, साधवो तेरे डिठे। प्यारियो मैं जानिया वड हंस है, ता मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा ता जन्म न भेड़ियां। कह लगे कि रहे हो संत हो टोल, साधवो तेरे डिठे। असी करनी वाले महापुरुष नूं लभ रहे सी, 1 साल तो लभ रहे सी, बहुत साध वेखे, संत लभ रहे सा, बड़े पखंडी वेखे असी। रहे हो संत हो टोल, साधवो तेरे डिठे। सन्यासी तपसी मुखों पंडित मिठे, बरस एक हो फिरियो किने न परचे लाए। कहने लगे असी साधां दे डेरे वेखे, असी जपस्वी तपस्वी उन्हां दे डेरे भी जाके वेखे जेड़े तिलक तां लाया होया सी, जिन्हां ने पूजा दा सारा साजो समान तां इकट्ठा कीता होया सी। पर हकीकत ए सी कि रहो संत हो टोल, साधवो तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वी मुखों पंडित मिठे, बरस एक हो फिरियो किने न परचे लायो। कहते हैं कहत सुनी, रहत को खुशी ना आया। उन्हां दी करनी अते कथनी विच फर्क सी। कहते हैं कहत सुनी, रहत को खुशी ना आयो। उन्हां दी करनी कुछ होर सी, रहत कुछ होर सी। रहत अवर किछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंडलावत। रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरदेव ने कहा मैनू जेड़े क्वालिटी चाहिए है, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये सानू भी सुचेत होने की लोड़ है। सिख नेमी होवे, सिख करनी अते कथनी दा पूरा होवे। केवल ये नहीं कि बाहरों पखंड वाली वर्दी पा लई ते अंदर जुड़िया ही नहीं होया। गुरदेव कहते ने नहीं, पातशाह ने सानू करनी अते कथनी दा सूरमा बनाया है। मेरे सतगुरु जी ने वो बाणी विच दर्ज किया। भट्ट साहिबान कहते ने कि रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे। तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलाए भिखिया जिव तू रखे तिव रहो। उन्हां 11 भट्टां ने एक जुबान हो के कहा मेरे मालका तेरी करनी अते कथनी एक है। सतगुरु तेरी शरण विच आ गए हैं, जिवें तू रखेगा तिवें असीं रवांगे। अज सानू पूर्ण गुरु मिल गया है। प्यारिओ जेड़ा 124 नंबर श्लोक है,
उस दे विच सतगुरु जी बख्शिश करते ने, क्या हंस क्या बगला जाको नदर धरे, जे तिस भावै नानका कागो हंस करे। धन गुरु अर्जन साहब कहते ने, भावें होवे हंस ते भावें होवे बगला, जिस उत्ते प्रभु की नजरे इनायत हो जाए, बख्शिश हो जाए, बख्शिश हो सकती है जे मनुख अरदास करे और अपने पखंडा तो तोबा करे कि सज्जन ते बख्शिश नहीं हुई, बख्शिश हो। मिनटां च तब्दील हो गया कि पंडित हरदयाल ते बख्शिश नहीं हुई, बख्शिश हो गई। मेरे मालिक कहते ने, जिस ते ओ बख्शिश कर देवे, कह लगे जिस ते ओ नदरे इनायत कर देवे, उसनों अपना बना लेंदा है, सो किसे तो नफरत नहीं। गुरदेव कहते ने, हे नानक, जे परमात्मा नूं चंगा लगे तां बगला तां किते रहा, वो कां तो भी हंस बना दिंदा है, बड़े विकारियां नूं भी सुधार दिंदा है। अगे श्लोक जो भाई साहब ने पढ़े है चौथा, सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, 125 नंबर श्लोक है। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, ए तन लहरी गड थिया, सच्चे तेरी आस। ये बाबा फरीद साहब की रसना तो उच्चारण किया होया। बाबा जी कहते ने, ये सरोवर है, संसार नूं भी सरोवर के है, शरीर नूं भी सरोवर के है। बाबा जी कहते ने, इस सरोवर दे विच कल्ला ए जिंद, ए जीव, ए आत्मा पंछी है। इस पंछी नूं फसाउण वाले, इस पंछी नूं जाल पा के फसाउण वाले फाहीवाल 50, कहण लगे 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, ये असल विच मुहावरे रूप विच वरतिया गया है। भावें कि कई संप्रदायी विद्वानां ने 50 की गिणती भी की है कि 5 विकार, अगे इंद्रियां दी, कर्म इंद्रियां की भी गल की है, ज्ञान इंद्रियां की, क्योंकि वह भी फसाउण विच लगे हुए। पर इत्थे कहण लगे फसाउण वाले बहुत सारे ने, कल्ला एक पंछी है, जिंद रूपी पंछी, और भयानक सरोवर है। कहते ने, ए तन लहरी गड थिया, लहरां ने विकारां दियां, ओदे विच ए तन फसिया पिया है। ते अरदास है मालक दे चरनां दे विच, सच्चे तेरी आस, मेरे मालक हुण केवल तो केवल तेरी आस है। इन्हां विकारां तो इस पंछी नूं आजाद करा दे। सचमुच प्यारिओ, धन गुरु नानक साहब कहते ने, इस गल नूं झुठलाया नहीं जा सकता कि इस भयानक सरोवर है, और इस भयानक सरोवर विच पानी नहीं, इहदी थां अग है। और गुरदेव पातशाह कहते, इत्थे मोहों दा चिक्कड़ है। कोई टावा टावा है जेड़ा मुरगाबी तो जेड़ा सिक्ख्या लैके अपने फंग नहीं भेजण दिंदा, उस चिक्कड़ तो उत्ते रह रहा है, नहीं तो बहुत सारे मेरे वर्गे डोबी रहे। तित सर वरड़ा पहले निवासा, भयानक सरोवर है। पातशाह कहते ने, तित सर वरड़ा पहले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पावक कहते ने अग नूं, पानी की थां अग है, तृष्णा की अग है। बड़े सारे डुब रहे ने, सड़ रहे ने। पंकज मोहो पग नहीं चल, हम देखा तहां डूबी अले। कहण लगे, मोह दे चिक्कड़ विच उन्हां दा पैर नहीं पुटिया जा रहा, असीं वेखिआ बेअंत इत्थे डुब रहे ने। किवें बचिया जाए, किवें बचा होवे? ते बाबा फरीद साहब कहते ने, सच्चे केरी आस, उस मालिक दी आस है, उस मालिक ते भरोसा रखो। मेरे धन गुरु अर्जन साहब कहते ने, ये ठीक है, अब पंच हम एक जना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी, पुकार जना। कहने लगे, ओ पंज ने, इस देही में पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, उन्हां तो जे बचना है ते धन गुरु अर्जन साहब ही मार्ग दसदे ने। जिवें बाबा फरीद साहब कहते सच्चे दी आस है, ते गुरदेव कहते ने बस अरदास करिया करो, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे,
पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे खेद करें और बहुत संतावें, आयो शरण तुहारे कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़े कत हूं नाही दाता, ये छड़दे नहीं, फसाउण वास्ते तैयार नहीं। सतगुरु इन्हां तो छड़ा लो, एक बात सुन तांकी ओटा, साथ संग मिट जाई। गुरु प्यारिओ, जिस संगत विच तुसी बैठे हो ना, इत्थे विकारां तो छुटकारा मिल जांदा है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज कहंदे ने, कर किरपा संत मिले मोहे। जदों संत मिले ना, करनी वाले दरवेश बाबा फरीद साहब वर्गे गुरु महापुरुष मिलणगे, तुहानू कोई करनी वाला दरवेश मिलेगा ना, ते सतगुरु पातशाह कहंदे ने, तिन ते धीरज पाया। फिर धीरज मिलता है। जो बाबा जी पातशाह कह रहे ना कि सरवर पंखी हेखड़ो भाई बाल 50, ए तन लहरी गढ़ थिया सच्चे केरी आस। बाबा जी कहते सच्चे दी आस ना छड्डना, उसका लड़ ना छड्डना। कर किरपा मिले संत मोहे, नित तिन ते धीरज पाया, उन्हें धीरज दिता। संती मंत्र दियो मोहे निरपौ, गुर का शब्द कमाया। कहने लगे महापुरुषां ने मैनू गुरु की सिक्ख्या दी, मंत्र दिता, शब्द कमाउण वास्ते दिता, निरभौ जपै सगल भौ मिटण दी दात दित्ती। कहण लगे जीत लिए ओ महा बिखादी, सहज सहेली बाणी। प्यारिओ, ए बाणी दी किरपा नाल ए पंज कुछ भी नहीं, ए बिखादियां नू झगड़ा करन वालियां नू बंदा जित लैंदा। पर यह अरदास कीतियां, जदों अरदास करांगे, राग पिता प्रभ मेरे, मोए निर्गुण सब गुण तेरे। सच्चे पातशाह किरपा कर। इन्नियां को विचारां आप जी ने प्रवान कर लैणियां। दास कोलों होईयां बेअंत बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां नूं ना चितारदे होए विचार सतगुरु दी जान के अपने हिरदे विच वसायो। इथों दे सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दा अते बाकी सारे सिंह साहिबान दा तह दिलों धन्नवाद है। कोटान को शुक्र धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा, जिन्हां ने आप सिर ते मेरा भरिया हथ रखिया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद, जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग ये मौका दिता है। बार बार भुल्लां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।